Hello, roll number 702. So, Altaf, are you able to hear me? And I'm hoping that rest of your batchmates are also being able to hear me properly. Okay? So today I am going to discuss about a sample synopsis. Okay. And this synopsis is having, as you are finding here, it is having only 5 pages. Okay. Are you able to see it properly? Out of these 5 pages, first 2 pages are cover pages. Okay. So effectively, you are finding only three, or you can say if you will minimize the spacing, then you will be able to see only 2 pages are there. Okay. So you are now able to understand that how concise our synopsis is going to be. Okay. So here what I have written synopsis on the topic, or your topic has to be given here. Okay. The library management system submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the degree of your honors. Okay. And after that, here it has been submitted by, suppose you are submitting it, so your name has to be here. Okay. Your examination roll number is to be here. Okay. And after that, the name of the department and the college is here. Okay. And year 2021 is here. Okay. So this is the designing of our cover page. Fine. I have designed it for you people so that you are not able to find any sort of difficulty. Okay. And after the discussion, I will send this document. This is the docx file. It is not PDF. Okay. So first 2 pages are meant for the cover page. Okay. And look, from here we have started our synopsis. So the first heading is title of the project. Okay. So the title is library management system. Okay. After that, I have given, look, the font size is 12 here, so you can make it 14. Okay. The font size for the title is usually 14. Okay. So here I have given you the objective. So this particular system that you are going to develop is to manage your library. Okay. There are n number of data available with your library, so you are going to manage them. Okay. What are the, you are having the list of books in the inventory. Okay. What are the request pattern of one particular user. Okay. And what are the transaction pattern of the user, that like suppose I have made 10 requests for the book. Okay. How many books I have get issued for myself, and how many have been returned by me. Okay. Whether the user is punctual in returning the book or not. Okay. Or whether he or she is always being fined. Okay. Now when you are going to develop a system, then that system is either going to be console based. Okay. Look, and when I was, don't say was, when I had started discussing programs. Okay. I had told you people that there are basically three types of programs. Okay. One is your console based program like C, C++, Java programs are console based programs. Okay. If you will work with Java Swing, Java Applet, VB.NET, etc., then you are going to get the window based programming. Okay.
Whereas if you will work on HTML, XML, PHP, etc., then you are going to develop web-based program. Okay. So right at this moment, I am taking care about window-based program. Okay. So your program is going to be an RDBMS. Okay. In which backend is going to be your database. Okay. And it is having a front end which is usually designed using window application. Okay. Like .NET, Java Swing, Java Applet, etc. Okay. Got the idea very clearly? Now we will move towards system requirements. Okay. आप जिस मशीन पर इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ओके। आपने कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज किया है? ओके। आपकी मशीन की हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, उसकी रैम कैपेसिटी क्या है, उसकी ग्राफिक्स कार्ड की जो कैपेसिटी है वो क्या है, एंड सो ऑन. ओके. So these are going to be provided here. Okay. अब ऐसा है कि अभी आप इतने कैपेबल नहीं हुए हो कि आप एस्टिमेट कर सको कि आप, ठीक है, आपने एक सेट ऑफ सिस्टम पर, एक प्लेटफॉर्म पर आपने सिस्टम को डेवलप किया. ओके. लेकिन आपको अभी ये जानकारी नहीं है कि आप स्ट्रीम साइज पता कर सको. ओके. जैसे आपके सिस्टम को डेटा इनपुट किया जाएगा, तो इनपुट स्ट्रीम कितने बिट्स का है या आउटपुट स्ट्रीम कितने बिट्स का है, अभी आप इसका एस्टिमेशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज राइट एट दिस मोमेंट यू आर नॉट मैच्योर एंड नॉट कैपेबल. ओके. तो अभी आप क्या करोगे, ये जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स का ये जो पॉइंट आपको यहां पर देना है, तो आप जिस मशीन पर काम कर रहे हो ना, उस मशीन के डिटेल्स को यहां पर डाल दोगे, उसके हार्डवेयर डिटेल्स को डाल दोगे, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डालोगे, और उसके बाद जो टूल्स आप यूज कर रहे हो आप उसके बारे में डालोगे. ओके. जैसे अगर आपने VB.NET का इस्तेमाल करके विंडो एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखोगे VB.NET. ओके. तो यहां पर मैं एक टॉपिक डाल देता हूं, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके. अब जैसे आप UML का इस्तेमाल करोगे, फाइन, सो यू हैव टू गिव इट हियर. ओके. बात समझ में आ गई? अभी आप जो है अभी इतने कैपेबल नहीं हो पाए हो कि आप डेडिकेटेड हार्डवेयर कैपेसिटी को बता सको. ओके. कि भाई आपकी जो ग्राफिक्स बन रही है, उस ग्राफिक्स के लिए आपको किस कैपेसिटी की ग्राफिक्स कार्ड चाहिए. ओके. आपकी जो इनपुट और आउटपुट है उसका बैंडविड्थ क्या है. ओके. So slowly you will be able to understand, but right at this moment I will ask you to skip all these things and just concentrate on your current system. Okay. कि आपके करंट कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके ऊपर आपको काम कर लेना है. ओके. गॉट इट? नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कि भाई हमारा लैंग्वेज क्या यूज होगा. तो लैंग्वेज की हेल्प से आप फ्रंट एंड डिजाइन करोगे और आप बैक एंड डिजाइन करोगे. ओके. अगर आप कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बनाते हो, ओके, तो आपके बैकएंड में या तो टेक्स्ट फाइल होगा और नहीं तो बाइनरी फाइल होगा. ओके. अगर आपने कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बनाया, आपका सिस्टम जो है वो कंसोल बेस्ड है. ओके. और कमांड लाइन आर्गुमेंट पर काम करता है. ओके. देन बैकएंड में आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा फाइल का. ओके.
और फाइल जो है वो दो तरीके के होते हैं, वन इज योर फॉर्मेटेड फाइल एंड द अदर वन इज योर नॉन फॉर्मेटेड फाइल. ओके, नॉन फॉर्मेटेड फाइल इज योर बाइनरी फाइल एंड फॉर्मेटेड फाइल इज यूजुअली कंसिडर्ड एज टेक्स्ट फाइल. ओके, तो इस सिचुएशन पर ग्राफिक्स कार्ड का बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं होगा. ओके, गॉट द आइडिया वेरी क्लियरली. अब अगर आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अगर कंसोल बेस्ड प्रोग्राम है, आपका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर काम करता है, देन आप जो फ्रंट एंड के रूप में यूज करोगे वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगे, जैसे कि कोर, जावा, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा. ओके, बात समझ गए. अगर आप विंडो बेस्ड प्रोग्राम बनाते हो, ओके, विंडो एप्लीकेशन अगर आपने डेवलप किया है, तो या तो आप वीवी डॉट नेट का इस्तेमाल करोगे. वीवी डॉट नेट का जब आप इस्तेमाल करोगे तो अगर इसमें क्लाइंट सर्वर सर्वर भी होगा, आपने नेटवर्किंग में तो पढ़ा ही होगा सर्वर. अगर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर काम कर रहा होगा तो आपको सर्वर पेजेस पर भी काम करना होगा. ओके, सो फॉर दैट पर्पस आपके पास एएसपी डॉट नेट का भी इस्तेमाल करना होगा. ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं कि भाई आप विजुअल बेसिक के साथ साथ एएसपी डॉट नेट का भी इस्तेमाल आप करें. ओके, अगर आप विजुअल जावा के ऊपर काम कर रहे हो, ओके, तो आपको जावा के स्विंग, जावा बीन्स, जावा के एप्लेट्स, इनका इस्तेमाल करना होगा. फाइन, बात समझ में आ गई. Graphics programming using C and C++ is not very easy. It is very, very complicated. Okay. तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो है सी और सी प्लस प्लस या जावा, कोर जावा का इस्तेमाल करके आप ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग ना करें. हाँ, ठीक है. तो काफी ऑब्सलीट हो चुका है आजकल, इतने प्रैक्टिस में नहीं है. फाइन, ऑल्दो दे आर द बेस्ट वंस. ओके, क्योंकि तब आपको जो है ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको रखने होंगे, एंड अल्टीमेटली व्हेन यू आर कीपिंग दोज इंफॉर्मेशन हाउ टू हैंडल ग्राफिक्स, है ना, देन आपकी नॉलेज की जो बैंक होगी वो काफी जबरदस्त हो जाएगी. ओके, बट राइट एट दिस एरा, हम लोग जिस युग में हैं, ओके, यहां पर वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाया जाता है. ओके, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए अभी आपके पास केवल एक लैंग्वेज की जानकारी है, दैट इज योर HTML. ओके, ओके, आपने DHTML, SHTML, XML ये सब तो पढ़ा नहीं है अभी. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको जो है सो PHP आप जानते नहीं हैं. तो अगर आप ये सारी चीजें जान लोगे, देन यू विल बी एबल टू डिजाइन वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, अब आप समझ रहे हो ना कि मैंने सेमेस्टर 4 में केवल डिजाइन पार्ट तक क्यों रखा है. समझ गए ना. So you are able to understand कि भाई how you are going to identify that which language you are going to use. Okay. और इसके लिए आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट की जो कैटेगरी होती है ना, ये प्रोजेक्ट की कैटेगरी जो है वो बेसिकली 3 तरह की है. ओके, तो 3 तरह की जो कैटेगरी है उसमें जो पहली कैटेगरी है वो है कंसोल बेस्ड. ओके, कंसोल बेस्ड जो है दैट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट पर ये काम करेगा. ओके, वन इज योर विंडो एप्लीकेशन. ओके, console based application, and the other one is your window based application. Okay, don't use the window, say windows based application. तो ये दो एप्लीकेशन हो गए, और जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन. ओके, तो आज के समय में वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो काफी ज्यादा
प्रैक्टिस में है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं हो रही है। और जब कभी भी आप बैकएंड पर जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको डेटाबेस जो है वो रिलेशनल मोड में चाहिए। ओके, यानी आप अपने डेटाबेस के दो टेबल को प्राइमरी की फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के थ्रू ज्वाइन करोगे। ओके, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे। फाइन, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? जस्ट वेट। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो ठीक से। ठीक है, ओके, सो जस्ट वेट। अब आपको मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया कि आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स जो है, वैसे अभी तो आप डेडिकेटेड वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो जिस सिस्टम पर काम कर रहे हो दैट सिस्टम इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ध्यान देना है। ओके, कि हमारे को वैसी ही मशीन चाहिए, क्योंकि जिस मशीन पर आप सिस्टम को डेवलप करोगे उसी पर आप काम करोगे। ओके, अब बैकएंड में आप एसक्यूएल का इस्तेमाल करोगे, लेकिन ज्यादातर आज के समय में जो है ना, हम लोग या तो बोलेंगे एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे और नहीं तो हम ओरेकल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो आप बैकएंड में या तो आप रखोगे माई एसक्यूएल को। ओके, तो ये जो दोनों माई एसक्यूएल और जो ओरेकल है, ये दोनों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ओके, इनके अलावे हम लोग एक हडूप नाम का हमारे पास है, दैट इज योर अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, आप समझ आ रही है? सो इट डिपेंड्स ऑन कि भाई आप किस तरीके के सिस्टम पर काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन चीजों को डिसाइड करना होगा। ओके, अब इसके बाद देखना है कि आप जो है कैसे काम करोगे, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है। तो या तो आपकी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी और नहीं तो ऑफलाइन होगी। अब यदि मान लिया जाए कि ये ऑफलाइन भी है, ओके, तो क्या करना होगा आपको? ऑथोराइज्ड लॉगिन अलाउ करना होगा। तो आपको यूजर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, यूजर्स को रजिस्टर करना होगा, और आफ्टर दैट ओनली यूजर्स आर गोइंग टू यूज योर सिस्टम। तो अगर आपने इसको ऑफलाइन रखा है तो आप फ्यूचर में इसको ऑनलाइन बना सकते हो, और अगर आपने इसको ऑनलाइन रखा है, ओके, तो फ्यूचर में आप इसके साथ कुछ और बेहतरी का काम कर सकते हो, और वो ये होगा कि आप इसको मोबाइल बेस्ड बना सकते हो। आप समझ रहे हो ना? चलिए, तो मैंने अपने ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था इसको कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, जैसे पहला मॉड्यूल है बुक। ओके, दूसरा मॉड्यूल है कि मेंबर्स जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक है, ठीक है ना? तीसरा है आपका मेंबर अकाउंट्स, चौथा है बुक इश्यू, पांचवा है बुक रिटर्न। ओके, छठा है आपका हिस्ट्री, और सातवां है रिपोर्ट। ओके, यहां पर मैं एक और डाल देता हूं, दैट इज योर फाइन मैनेजमेंट। ओके, तो आपकी जो मॉड्यूल है उसमें अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। ओके, अब जैसे एक बुक इश्यू करना था, किया गया 15 डेज के लिए, और उसको रिटर्न करना था डेट ऑफ इश्यू के 15th डे के बाद। ओके, और एक पर्सन जो है वो 6 महीने तक बुक रखे हुए है। ओके, तो उसका तो कोई यूटिलिटी है नहीं, क्योंकि 6 मंथ तक अगर उसने बुक को अपने पास रखा हुआ है तो उसका सेमेस्टर चेंज कर गया ना, तो सेमेस्टर चेंज कर गया तो उस बुक का तो अब कोई रोल नहीं रहा। It seems to me, it seems to me that you are facing some sort of difficulty. Okay.
Just wait. Roll number 710. Yes, sir. Are you able to hear me properly? Hello? 710. Yes, sir. Are you able to hear me? Why you are muting yourself every now and then? Are No, you sir. able to? Actually, Altaf said something, so that's What why I happened? muted myself. What happened? Altaf said something. Okay, okay, Actually, no problem. Altaf. Okay, fine. So let's continue. Okay. Okay, sir. Okay, sir. So right at this moment, you are able to find that these modules are listed here. Okay. Yes, sir. Now after that, you are going to design your data structure. Fine. Yes, sir. So don't use the term data structure, use the term database, okay? Or let it be data structure as well as a database, okay? Yes, sir. तो हमारे को अब इंफॉर्मेशन को के पैटर्न को डिजाइन करना होगा सो दैट हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट, ओके? तो Yes, sir. हमने जो है कुछ टेबल्स यहाँ पर रखा है, जिसमें एक टेबल है वो है लॉगिन टेबल, ओके? तो Yes, sir. लॉगिन टेबल में यूजर का जब लॉगिन करेगा तो उसका रोल क्या होगा? दैट इज Yes, sir. यूजर टाइप, ओके? और जस्ट से रोल। तो Yes, sir. देखो मैं Yes. इस लॉगिन टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? लॉगिन Yes, टेबल sir. के एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं। पहला जो एट्रीब्यूट होगा वो होगा यूजर नेम, है ना? दूसरा होगा Yes, sir. पासवर्ड, है ना? और तीसरा होगा Yes, यूजर sir. टाइप, कि आप किस तरह के यूजर हो। आप एडमिन के रूप में लॉगिन कर रहे हो या नॉर्मल यूजर के रूप में लॉगिन कर रहे हो, ओके? बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब ये जो यूजर Yes, sir. नेम है, इस यूजर नेम का डेटा टाइप देखो क्या होगा, ओके? इस यूजर नेम का Yes, sir. डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर होगा, ओके? और इसका साइज कितना, तो हमने Yes, sir. यूजर नेम का साइज रखा है कि भाई हम यूजर नेम का साइज रखते हैं मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स का, ओके? ये जो Yes, पासवर्ड sir. है, इस Yes, sir. पासवर्ड के बारे में मैंने बोला कि पासवर्ड जो है इसका टाइप जो होगा वो होगा कैरेक्टर टाइप, ओके? इसका साइज जो होगा वो 8 से लेकर के 10 कैरेक्टर्स का होगा, ओके? और इसमें Okay, आपको sir. अपर केस, लोअर केस और स्पेशल सिंबल जो है वो तीनों आपको डालना होगा, ओके? अपर केस कैरेक्टर भी होगा आपका, Yes, sir. लोअर केस कैरेक्टर भी होगा, Yes, sir. और साथ में आपको कुछ स्पेशल सिंबल्स का भी इस्तेमाल करना होगा, ओके? आपको पता चल गया ना कि हम किस Yes, तरीके sir. से अपने टेबल को डिफाइन कर रहे हैं। अब यूजर Yes, टाइप sir. जो है वो आपका इसका डेटा टाइप होगा कैरेक्टर, ओके? और Yes, sir. इसका साइज जो होगा वो होगा 10
एक स्टाफ अकाउंट नाम का टेबल होगा, एक मेंबर अकाउंट नाम का टेबल होगा, एक बुक रिक्वेस्ट के लिए टेबल होगा, बुक इश्यू के लिए होगा, बुक रिटर्न के लिए होगा, और इन सबों के अलावे आप चाहोगे तो फाइन के लिए भी आप एक टेबल बना सकते हो। ओके, Yes, yes, sir. तो जस्ट Okay, sir. तो आप देख लो कि आपकी जो सिनॉप्सिस है उस सिनॉप्सिस में मैंने कितने आइटम्स को रखा है। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रख दिया है, देख रहे हैं आप ना, यहाँ पर Yes, ऊपर sir. में आपकी ऑब्जेक्टिव रखी हुई है। ओके, Yes, sir. तो अब आप जो है यहाँ पर जो आप सिस्टम बना रहे हो उसके रोल के बारे में बताओगे। ओके, Yes, sir. तो आपका जो सिस्टम है वो आपको यूजर को किस तरीके से हेल्प करेगा। ओके, Yes, sir. आपकी ये सिस्टम जो है उसमें एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो आप बुक की ट्रैकिंग बहुत आराम से कर सकते हो कि कौन सी बुक किस पर्टिकुलर यूजर को इशू की गई है। ओके, Yes, sir. उसे कितने समय तक इशू कराए हो गया है, वेदर ही और शी हैज बिकेम डिफॉल्टर और नॉट। ओके, Yes, yes, sir. अब देखिए किसी भी सिस्टम की प्राइमरी गोल पनिश करना नहीं होना चाहिए। ओके, Yes, sir. मैं प्रतीक्षा करता रहूं कि रोहित गुप्ता जो है वो गलती करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, तो ये मेरा रोल नहीं है। ओके, Yes, sir. मेरा रोल है कि मैं बताऊं कि रोहित गुप्ता आप गलत करने के जगह पर पहुंच गए हैं। ओके, Yes, sir. now whatsoever you are going to do is going to be bracketed under non acceptable activities. Okay, Yes, sir. इसका मतलब है यू आर गोइंग टू बी मॉनिटर्ड। ओके, Yes, sir. तो आपकी सिस्टम जो है वो आपको मॉनिटर करेगी और आपको प्रॉम्प्ट करेगी, आपको बताएगी कि नाउ यू हैव borrowed this book and now you are on the verge of being defaulter. Yes, sir. आपको एक दिन पहले आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपने इस बुक को इतने तारीख को इशू कराया था, इसकी रेफरेंस आईडी ये है, और आपने जब इसको इशू कराया था तो अब आपको रिटर्न कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास केवल एक दिन बचा हुआ है। ओके, Yes, yes, sir. तब आपको जब एक ट्रिगर के थ्रू आपको एक मैसेज मिल जाएगा, देन यू विल बिकम अवेयर एंड नाउ यू विल ट्राई टू रिटर्न द बुक। Yes, sir. अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया देन आपको रिमाइंडर देना होगा कि भाई आपने डिफॉल्ट कर दिया है। ओके, Yes, sir. क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है ना वो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स से बनता है। ओके, Yes, sir. और इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो है उसको इस तरीके से बनाना है कि उनके बीच में आपस की रिलेशनशिप स्मूथ रहे। ओके, Yes, sir. and for that purpose some sort of accountability, some sort of intimacy has to be there. Okay, Okay, sir. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही और इंटीमेसी का मतलब होता है लगाव। ओके, Yes, sir. आप किसी काम के प्रति अगर लगाव फील कर रहे हैं, इंटीमेसी फील कर रहे हैं, देन यू विल ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज यू विल नॉट ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, Yes, sir. और ये जो सिस्टम है इस सिस्टम से आपको क्या होगा, आपका मैनुअल वर्क जो है वो करीब करीब 0 हो जाएगा। ओके, Yes, sir. तो कुछ मैनुअल वर्क रहेगा, जैसे कि आपने रिपोर्ट प्रिंट किया। ओके, Yes, sir. तो रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंटर में जो पेज फीड करना होगा वो आपको मैनुअली करना होगा। Yes, sir. रिपोर्ट जब प्रिंट हो गया उसके बाद जो पेजेस आपको मिले, प्रिंटेड पेज, उनको आपको एक जगह इकट्ठा करके रखना होगा। Yes, sir. So there are some activities that are still to be performed in manually. Okay, Yes, sir.
But despite that, you will find that your majority of the tasks are going to be performed using your system. Okay. Yes, sir. तो मैं यहाँ पर जानबूझ करके एक न्यू टर्म ला रहा हूँ, बेनिफिट्स. ओके, फॉरगेट अबाउट Yes, रोल, sir. जस्ट थिंक अबाउट द बेनिफिट्स कि भाई आपके इस सिस्टम का बेनिफिट क्या होगा. ओके. Yes, sir. और आपके सिस्टम का फ्यूचर स्कोप क्या है, तो ये देखिए फ्यूचर स्कोप भी मैंने आपको डिजाइन करके बताया कि आपका फ्यूचर Yes, स्कोप है कि अगर आपकी ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तो आप इसको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करोगे. yes, sir. और अगर ये आपकी ऑनलाइन मोड में है, तो आज के समय में तो भाई स्मार्टफोन पर काफी काम हो रहा है ना. Yes, sir. तो आप जो हो क्या करोगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने की कोशिश करोगे, सो दैट कि Yes, आपके जो है सो मेंबर्स हैं उनको अपने स्मार्टफोन से ही काम करने में हेल्प हो जाए. yes, sir. So these are, don't say these are, so this is the synopsis of a sample synopsis with respect to library management system. Okay. Okay, sir. उम्मीद करता हूं रोहित आपको और आपके बाकी जो बैचमेट्स हैं उनको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा. ओके. Yes, sir. तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो सिनॉप्सिस हमने बनाया. ओके. Yes, sir. ये सिनॉप्सिस बहुत सुपरफिशियल सिनॉप्सिस है. ओके. Yes, sir. क्योंकि यहां पर आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम की स्टडी नहीं की है. ओके. Yes, sir. तो अगर आप इस सिनॉप्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंसिव बनाना चाहोगे, तो आपको एक एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी सिस्टम की स्टडी करनी होगी. जैसे हमारे डिपार्टमेंट की एक लाइब्रेरी है, Yes, sir. हमारे कॉलेज में भी एक लाइब्रेरी है. Yes, sir. तो ये दोनों लाइब्रेरी की अगर आप स्टडी करोगे, तब आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी जो है वो किस तरीके से काम करती है. ओके. Yes, sir. तो फिलहाल हम लोगों ने ये स्टडी जो है, हम लोगों ने आइडिया कहां से लिया है उसके बारे में मैंने नहीं बताया. ओके. Yes, sir. सो यू कैन से दिस इज जीरो लेवल सिनॉप्सिस. ओके. Yes, sir. तो आप देख चुके हो कि इस सिनॉप्सिस में जो जो हेडिंग्स है मैंने उसको बोल्ड और उनका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको किन किन हेडिंग्स पर काम करना है. Yes, sir. कोई दिक्कत है तो बोलिए. No, sir. अभी तक तो कोई कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत नहीं है. No, sir. तो मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग बाय द एंड ऑफ दिस वीक मेरे को संडे तक सिनॉप्सिस चाहिए. ओके. Okay, sir. आपको मेरी मेल आईडी मालूम है ना. Yes, sir. तो ये सिनॉप्सिस, ये एक सैंपल सिनॉप्सिस है और आपको मैं अपनी मेल आईडी भेज दूंगा. उस मेल आईडी पर बाय संडे अपने अपने सिनॉप्सिस भेजने हैं. ओके. Yes, sir. क्योंकि आप लोग वहां ग्रुप पर काम करोगे. ओके. Yes, sir. इसलिए यहाँ पर आप जो है, जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स का नाम दोगे. ओके. Yes, sir. कॉमा के द्वारा सेपरेट करोगे और उनके एग्जामिनेशन रोल नंबर्स को सेमीकोलन के द्वारा सेपरेट कर दोगे. ओके. Yes, sir. सीए वाले अलग सिनॉप्सिस देंगे और आईटी वाले अलग सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे. ओके. Yes, sir. गॉट द आइडिया वेरी क्लियरली रोहित. Yes, sir. So I am sure you are now in a position to design your synopsis. Okay. Yes, sir. और आपको मेरे से जितने हेल्प की जरूरत होगी, you will be able to get that help. Okay. Yes, sir. Sure, sir. Right at this moment, I am going to wind up, and before that, I am going to capture the screenshots. Okay. Okay, sir.
So hopefully you are comfortable enough to solve the problems. Okay. Yes, sir. Roll number 726. 726 is absent. No problem. Roll number 801. Yes, sir. So Umang, you have got the idea. Yes, sir. आप सिनॉप्सिस डिजाइन कर पाओगे? Yes. Try कर सकते. ओके. आपने पहले कभी सिनॉप्सिस डिजाइन किया था? No, sir. Okay, so this is going to be for the first time. Okay, Yes, sir. no problem. बहुत सारा काम हमें अपने जीवन में पहली बार करना पड़ता है. ओके, Yes, sir. तो हम लोग देखेंगे, काम करेंगे, गलतियां होंगी उसको सुधारेंगे, उसमें क्या है. ओके, Yes. रोल नंबर 701. Yes, sir. Got the idea, Joya? Yes. Yes. So I am expecting the respective synopsises by the end of this Sunday. Okay. Okay, sir. तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है मेरे से एडिशनल टाइम नहीं लोगे, और जो टाइम मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं अराउंड 4 to 5 डेज की टाइम है. इस टाइम शेड्यूल में आप लोग मेरे को सिनॉप्सिस सबमिट कर पाओगे. ओके. Yes. ओके. So just wait for about a minute or so, and after about some 5 to 10 seconds, and after that I will let you people go. Okay, thank you very much, my dear students. You may leave now. Thank you, sir.